Good morning, my dear friends and students. Today we will discuss human-female reproductive system. So let us start. Human-female reproductive system के क्या-क्या parts आते हैं? इसमें सबसे पहले आती हैं a pair of ovaries, a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina and external genitalia. ये सभी parts मिलके हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाती हैं और ये सभी पार्ट्स मिलके क्या क्या काम करती हैं? दे हेल्प इन ओव्यूलेशन, दैट इज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल्स, देन fertilization and pregnancy. Fertilization is union of male and female gamete, and pregnancy after that if the zygote is found, then birth of the child and child care along with mammary glands. So these are the functions of the female reproductive system, which are carried out by all of these parts in coordination with one another. So let us start with ovaries. Ovaries are the primary sex organs in human females. तो human females में जो ovaries हैं उनका main काम क्या है? Production of ovum. So they act as primary sex organs. कितनी होती हैं? 2 ovaries present होती हैं. कहाँ पे present होती हैं? One on each side of the uterus. And this female reproductive system, it is present in the pelvic region of the body. And अगर हम इनकी लेंथ की बात करें ओवरी की, so each ovary is 2 to 4 centimeter in length and it is attached to the pelvic wall and the uterus by ligament. Now comes the structure of the ovary. So this is the structure of the ovary. The outermost layer of the ovary is known as germinal epithelium. The outermost layer of the ovary is germinal epithelium, and inner to which is present a thinly dwelled connective tissue layer which is known as tunica albuginea. And the inner matrix or stoma of the ovary is divided into outer cortex and inner medulla. So this outer portion is known as cortex, whereas the inner part is known as medulla, and this is known as matrix or stoma of the ovary. तो यहाँ पे इसके मैट्रिक्स में, इसके कॉर्टेक्स में हम बहुत सारे एग नेस्ट देख सकते हैं या प्राइमरी फॉलिकल्स जो है डिफरेंट स्टेजेस में देख सकते हैं. So this is egg nest, this is egg tube, and this is primary follicle. So every month one primary follicle matures into a Graafian follicle under the stimulation of FSH. FSH is follicle stimulating hormone. तो follicle stimulating hormone की उसके influence के अंडर every month one primary follicle is changed into Graafian follicle. So these are the various stages of maturation of Graafian follicle into mature ग्राफिन फॉलिकल. किस तरीके से प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में चेंज होता है, तो यहाँ पे ये स्टेजेस आई हैं. एंड एट द टाइम ऑफ द ओव्यूलेशन दिस मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल इट रप्चर्स, वॉल ऑफ द ओवरी रप्चर्स एंड द सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड इन द ओविडक्ट्स. जो इससे आगे ओविडक्ट्स आएंगी वहां पे ये ओव्यूलेशन होती है, वहां पे ये सेकेंडरी oocyte जो है ये रिलीज हो जाता है. देन आफ्टर दिस सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल, द लेफ्ट वन जो पीछे रह जाता है दैट इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम. ये कॉर्पस ल्यूटियम पहले डेवलप कर रहा है, यहाँ पे फुली फॉर्म्ड कॉर्पस ल्यूटियम है. कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है? इफ द प्रेगनेंसी अकर्स, अगर सेकेंडरी oocyte के पास स्पर्म मिलता है, इसको इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाती है और अगर ज़ाइगोट बनता है, ज़ाइगोट की इम्प्लांटेशन होगी एंड देन देयर विल बी प्रेगनेंसी. और अगर प्रेगनेंसी होती है देन दिस कॉर्पस ल्यूटियम इट इज एसेंशियल बिकॉज इट सिक्रीट्स द हार्मोन्स which are essential to maintain this pregnancy. And if there is no fertilization, if no zygote is formed, then this corpus luteum also degenerates, and degenerating corpus luteum is known as corpus albicans. So this is the structure
of human ovary, LS human ovary, which shows how the primary follicle is changed into mature Graafian follicle, how the secondary oocyte is released from the Graafian follicle, and how the corpus luteum is formed. And if no zygote is formed, this corpus luteum degenerates into corpus. First it is known as corpus albicans and then it degenerates. ओवरीज के बाद आती है accessory ducts. Accessory ducts में हमारे पास क्या क्या आता है? A pair of oviducts या fallopian tubes, एक ये और एक a pair of oviducts or fallopian tubes, then uterus, this part is uterus, and then vagina. ये तीनों मिलके हमारे पास accessory ducts बनाते हैं. तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं. सबसे पहले हमारे पास आते हैं fallopian tubes. तो fallopian tubes कैसी होती हैं? हर एक fallopian tube को अगर हम देखें तो it is 10 to 12 centimeter long and it has 3 parts. fallopian tube के हर एक fallopian tube या oviduct के 3 parts होते हैं. कौन कौन से? infundibulum, ampulla and isthmus. infundibulum, ampulla and isthmus. infundibulum जो है it is the lowermost part of the oviduct which is present near to the ovary. और इसके इस पार्ट में यहाँ इस तरीके से फिंगर के जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे हमारी फिंगर्स होती हैं उसकी तरह प्रोजेक्शंस होते हैं. और इसका इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं फिम्ब्रिए. इनका काम क्या है? इनका काम है कि जब ओवरी से ओव्यूलेशन होती है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, तो ये फिम्ब्रिए उस सेकेंडरी oocyte को कैच करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा स्वोलन पार्ट जो है दैट इज एम्पुला, और उसके बाद जो नैरो पार्ट आता है दैट इज isthmus. isthmus से आगे यूट्रस शुरू हो जाता है. यूट्रस की अगर हम बात करें तो यूट्रस जो है ये सिर्फ एक होता है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वॉर्म. यूट्रस को हम वॉर्म भी कहते हैं. अगर इसकी शेप को हम देखें तो जो हमारे पास पियर होता है अगर उसको हम उल्टा करके रख दें तो वैसे इसकी शेप आती है यूट्रस की. और यूट्रस का नेक्स्ट पार्ट आता है सर्विक्स. सर्विक्स के अंदर क्या आती है? सर्वाइकल कैनाल. और उससे नेक्स्ट पार्ट है वेजाइना. तो सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना दे टुगेदर फॉर्म द बर्थ कैनाल. ये वो बर्थ कैनाल है जहां से बच्चे का जन्म होता है. यूट्रस जो है बच्चे को फीड करता, उसको पालता है अपने अंदर, और जब उसके गेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाता है उसके बाद बच्चा इस बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आता है. अब अगर हम यूट्रस की लेयर्स की बात करते हैं तो हमारे पास यूट्रस में 3 लेयर्स आती हैं. कौन कौन सी? इनर मोस्ट इज एंडोमेट्रियम, मिडल वन इज मायोमेट्रियम एंड द आउटर मोस्ट इज पेरीमेट्रियम. एंडोमेट्रियम जो यहाँ पे रेड कलर से मार्क करी गई है दिस इज एंडोमेट्रियम. ये यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर है और ये क्या करती है? इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है और ये हर महीने अपने आप को तैयार करती है कि इसे जाइगोट मिलेगा और ये जाइगोट को इम्प्लांट करेगी. इम्प्लांट मीन्स अटैचमेंट ऑफ जाइगोट टू द यूटेराइन मेम्ब्रेन. जब जाइगोट की इसमें इम्प्लांटेशन हो जाती है उसके बाद यह जाइगोट को फीड करती है, उसका एम्ब्रियो बनाने में हेल्प करती है. लेकिन जब एंडोमेट्रियम को जाइगोट नहीं मिलता तो क्या होता है? हर महीने ये वाली सारी लेयर रप्चर हो जाती है और मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू ये बाहर निकल जाती है. सेकेंड लेयर आती है इसकी मायोमेट्रियम. मायोमेट्रियम इट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस. ये यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. और उसके बाद हमारे पास आता है वेजाइना. वेजाइना क्या है? वेजाइना इज द फीमेल copulatory organ and also it is a passage to the menstrual flow. इसमें जो vagina है इसकी जो opening है it is partially covered by a thin layer which is known as hymen and this vagina is devoid of glands. इसका मतलब है इस vagina में कोई भी glands present नहीं होती. चलिए तो अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में बात करते हैं. एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन फीमेल्स इज फॉर्म्ड ऑफ मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस. तो व्हाट इज मॉन्स प्यूबिस? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैट टिश्यू
which is covered with skin and pubic hair. Then comes labia majora. It is a fleshy folds of tissue which surround the vaginal openings. तो वो टिश्यू जो वेजाइनल ओपनिंग्स को सराउंड करते हैं दे आर नोन एज लेबिया मेजोरा. उसके बाद आते हैं लेबिया माइनोरा. तो दीज आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू which are present under labia majora. And then hymen. Hymen जैसे अभी हमने पहले भी बात करी थी, hymen is a thin membrane which partially covers the opening of vagina. And the last is clitoris. Clitoris is a tiny finger-like structure which is present at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening. जहाँ पे यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है उसके ऊपर जहाँ पे दो लेबिया माइनोरा एक दूसरे के साथ मिलते हैं वहां पे क्लाइटोरिस प्रेजेंट है which is a finger like structure. And now comes the glands. The glands which are associated with female reproductive system. So they are mammary glands. Mammary glands are one pair and they have glandular tissue and variable amount of fat. In मेमरी ग्लैंड्स के अंदर बहुत अलग अलग अमाउंट में अलग अलग मेमरी ग्लैंड्स में अलग अलग अमाउंट में फैट्स प्रेजेंट होता है और साथ में ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है. इस ग्लैंडुलर टिश्यू को अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या होते हैं 15 to 20 मेमरी लोब्स होते हैं which have clusters of cells जिसमें सेल्स इकट्ठे हुए होते हैं and these clusters of cells are called alveoli. alveoli ये मिल्क secrete करते हैं which is stored in the cavity of alveoli and this cavity of alveoli open into the mammary tubules. These mammary tubules join further together to form mammary duct which further open into larger duct which is known as mammary ampulla. And finally these mammary ampulla open into lactiferous ducts and from the lactiferous duct milk is sucked out. So this was about the female reproductive system. I hope आपको समझ आया होगा. तो नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. स्वस्थ रहिए.